Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So let us get started with today's lecture. And today's lecture obviously is a continuation of analysis of financial statements which has been mentioned above. It's been a long time that we have been doing this particular lecture. It is categorized for the Maharashtra State Board HSC level into three parts. The first part being where you were introduced with this particular balance sheet and also with the revenue statement. Balance sheet normal asset and liabilities थे. रेवेन्यू स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट का मतलब था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हाँ, इट इज़ नॉट दैट यू डोंट नो, आपको ये पहले से पता नहीं है, बट द डिफरेंस वॉज ये वर्टिकल फॉर्मेट में था, मतलब अप एंड डाउन. देन द सेम थिंग वॉज थॉट टू यू विथ टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालिसिस. वन वॉज कॉमन साइज, द अदर वॉज कंपेरेटिव. वो लाइक पार्ट 1 था. पार्ट 2 वॉज रेशियो एनालिसिस, वे आपने यही स्टेटमेंट्स में से दो नंबर लिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, रेशियोज में उसके आंसर्स आपने दिए. सो टू से वो पार्ट 2 था. टुडे वी स्टार्ट विथ अ थर्ड एंड फाइनल पार्ट. नाउ व्हाट इज द थर्ड एंड फाइनल पार्ट? इट इज कॉल्ड एज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. नाउ होल्ड ऑन, लेट मी पुट इट अप ऑन डिस्प्ले फॉर यू बिहाइंड मी and give you a little idea regarding कैश फ्लो स्टेटमेंट. पहले तो लुक मैं बता देता हूँ. तो जो मेरे पीछे है, अगेन वर्टिकल, अप डाउन, ओके. सो ऊपर से नीचे तक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, मेरे ऊपर है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वेल अभी उस तरफ चला गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड अ लिटिल बिट बिलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो जस्ट टू टेल यू, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आज के लेक्चर के दौरान जो मैं डिस्कस करूँगा वो ये जो ऊपर से नीचे बनाया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके. उसके आगे आप नोटिस करोगे AS3 क्वेश्चन मार्क, S3 नो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जैसे मूवीज़ में होता है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, फास्ट एंड फ्यूरियस, पार्ट 9, पार्ट 10, ओके. समथिंग सिमिलर where you have an AS1, AS2, 10, 20, 30 ऐसे करके काफ़ी है. What is an accounting standard? It is rules and regulations which the committee which is appointed by ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, उन्होंने एक कमेटी बनाई है, एक बोर्ड बनाया है
जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, एंड दोज पढ़ा लिखा लोग मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि फुल कंट्री ऑफ इंडिया में व्हेन अकाउंटेंसी इज डन, okay, different companies don't follow different styles of presentation, different rules and regulations, then it becomes very difficult for whom, for the normal जनता जनार्दन, हमारे लिए ये कंपनी का प्रॉफिट अलग है बट उसके अकाउंट्स के रूल भी अलग है, ये दूसरी कंपनी के खर्चे अलग है, उसके अकाउंट्स के रूल अलग है, then it becomes very complicated. Accounting standard is a rule. AS3 is a rule which is connected to cash flow. तो कैश फ्लो में ऊपर से नीचे तक जो भी लिखा गया है वो मैंने नहीं कहा, उस प्रोफेसर या टीचर ने नहीं कहा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा. राइट नाउ ये तो हो गया टेक्निकल डिस्प्ले, बट क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सॉरी, नॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. What is, because that's not part 3. Part 3 is cash flow statement. So the question is, what is cash flow statement? A long time back, maybe आपके फर्स्ट ईयर में आपको ये जो ऊपर डिस्प्ले पे लगाया गया ना, it is a cash book. Now, what is there in a cash book? Well, लेफ्ट साइड पे ये जो लिस्ट आपको दिखती है, that is receipt. What does receipt mean? पैसा आया. और राइट साइड पे जो आपको दिखता है दैट इज पेमेंट, पैसा गया. सो इन एवरी शॉप, छोटा बड़ा, एवरी कंपनी छोटा बड़ा, ओके, देर इज अ रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड कि पैसा कहाँ कहाँ से आया और पैसा किस किस को हमने पे किया. रिसिप्ट, पेमेंट. ओके, आई रिपीट, मोस्ट प्रोबेबली व्हाट इज इन डिस्प्ले बिहाइंड you may have covered up in your first year of college life. Now this is of a very normal simple shop, छोटा दुकान, बट जब ये कंपनी लेवल पे बनाया जाता है तो इसका ऑब्वियसली लुक बदल जाता है, बिकॉज मे बी फॉर अ स्मॉल शॉप देर इज नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है रूल्स को फॉलो करने की. दुकान मेरा है, मैंने मेरे पैसे डाले हैं, मैं जैसे चाहे अकाउंटेंसी कर सकता हूँ. ओके, आपकी दुकान छोटी दुकान है, ओके, पैसे आप नहीं डाले हैं, बट जब कंपनी होती है तो कंपनी में पैसा तो पब्लिक डालती है. हाँ, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, वरना फ्रॉड घपला हो जाएगा. सो दिस सेम थिंग, हाउ डू वी सॉल्व एट अ कंपनी लेवल is what is cash flow statement. What you see behind me is cash flow. What does the word cash flow mean? पैसा आया तो वो लेफ्ट में लिखा है, पैसा गया वो यहाँ पे राइट में लिखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट. तो बेसिकली राइट नाउ what is that we have to think? We have to think something like a cashier. Okay, मेरे पीछे तो काफ़ी डॉलर्स है, आप सोचो ये रुपीज़ है. But what is this entire thing? This is a cash box. That is very important. In every business, छोटा या बड़ा, there is a place जहाँ पे कैश रखा जाता है. या तो वो ऐसे सिंपल से एक बॉक्स में रहेगा, there is a possibility कि वो सिंपल से बॉक्स में नहीं होगा, बड़े से तिजोरी में हो सकता है. But there is a place, एक जगह है जहाँ पे कैश रखा जाता है. और दो ही चीज़ें होती है उसमें, कैश आता है और कैश जाता है. वी हैव टू टुडे लर्न एट अ कंपनी लेवल. ओके, क्योंकि कंपनी लेवल की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो सिंपल नहीं है, वो हमारे जैसे तू मैं की भाषा नहीं है, हाय हेलो की भाषा नहीं है. सो दिस एंटायर स्टेटमेंट, माय अपॉलॉजीज, ओके, आई हैव गॉट बैड रनी नोज टुडे. सो दिस एंटायर स्टेटमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम actually is bifurcated into 3 parts. I repeat myself, मैंने खाली कर दिया. This is the official statement, in which if you notice, let me tell you and let me show you at the very top, cash flow from operating activities. So this is part 1. In fact, अगर आप थोड़ा notice करो, it's written there 1. So this is the first part, हिस्सा of a cash flow statement. थोड़ा अगर आप नीचे आ जाओगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
बाकी ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देयर इज अ लॉट ऑफ मसाला विच हैज बीन पुट. ओके, राइट नाउ आप ऊपर ऊपर हेलीकॉप्टर व्यू समझ लो कि एक पार्ट है जिसका नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा पार्ट है जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब कार्य, काम, एंड तीसरा पार्ट है जिसका नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो राइट नाउ अगेन व्हाट आई पुट अप हियर जस्ट अबाउ मी वाज दैट पार्ट जहाँ पे ब्रैकेट में कहा गया है इज ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो यू शुड अंडरस्टैंड क्या कि होता क्या है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सेकेंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है. एंड थर्ड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अगेन यू शुड अंडरस्टैंड कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है. अबाउ मी, बिहाइंड मी, एवरीथिंग इज टेक्निकल भाषा. सिंपल लैंग्वेज में कैन दिस बी एक्सप्लेन्ड? वेल, लेट मी ट्राई माई बेस्ट. आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. सो हियर गोस. सिंपल लैंग्वेज में कंपनी की बात नहीं करते हैं, अपने घर की बात करते हैं. छोटा सा घर, वेल ये छोटा घर नहीं है, काफ़ी बड़ा घर है. ओके, बट वी विश ना, हमारी भी इच्छा होती है हमारा भी घर ऐसा लगे, विच आई होप हम सभी का कभी ना कभी बन जाए. ओके, घर में जो कैश आता है और जाता है वो यही तीन एक्टिविटीज में आप बांट सकते हो. ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हमारा घर तुम्हारा घर कि ये क्या होता है. ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मनी, पैसा, कैश जो आता है जाता है घर के अंदर एवरी डे के काम से, एवरी डे की खरीदी से. अच्छा, मीनिंग वो जो फल है, फ्रूट्स, हाँ वो नॉर्मली हर दिन तो खरीदते ही है, बेचते नहीं है, खरीदते हैं, तो पैसा जाता रहेगा. चावल, ओके, वो भी चलो हर दिन नहीं, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में खरीदते रहेंगे. देन वेदर इट इज अ टोमेटो, वेदर इट इज शुगर, वेदर इट इज पुदीना, कोरिएंडर, वेदर इट इज आलू, वेदर इट इज अनियन, वेदर इट इज टाटा सॉल्ट, वेल कोई भी सॉल्ट हो सकता है. आर दीज एनीथिंग वेरी वेरी स्पेशल कि अगर घर के अंदर शक्कर खरीदा, शुगर, तो क्या ढोल नगाड़े बजा के उसका वेलकम करेंगे? नहीं, ये तो हम लोग हर दिन खरीदते हैं. अच्छा, कांदा, टमाटर, बटाटा, ये भी हर दिन खरीदते हैं. ये तो हम वी रिक्वायर एवरी डे ना, हर दिन हमारी ज़रूरत होती है. इससे ही हम हमारा जो खाना है, मम्मी जो है, पापा जो है, बड़ी बहन, बड़ा भाई, जो भी घर के अंदर खाना पकाता है, इसके बगैर थोड़ी कर सकते. नमक तो यार सब में लगता है. ओके, तो ये तो हर दिन का चीज़ है. यस, घर में जब पैसा आता जाता है बिकॉज ऑफ एवरी डे खरीदारी, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी. हर दिन का ऑपरेशंस मीन्स व्हाट? जनरल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एवरी डे का खर्चा. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? वेल, लेट्स सी. ये क्या है? ये अपना जो कुक टॉप होता है जिसके ऊपर बर्तन रखकर हम खाना बनाते हैं, ये आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे खरीदते हो? नहीं, आपका घर का पता नहीं. मेरे घर में तो 5-6 साल में एक ही बार इसको खरीदते. जब तक खराब ना हो तब तक उसको हम लोग साफ़ करते रहते, यूज़ करते रहते, साफ़ करते रहते, यूज़ करते रहते. क्या है? रेफ्रिजरेटर. कितनी बार खरीदते हो? संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च? नो रे, ये खरीदेंगे तो चल जाता है, इनफैक्ट 8-10 साल चल जाता है. ओके, अगर इसको संभाल के रखा जाए. गाड़ी, अरे गाड़ी तो और टाइम तक चलती है. टेलीविज़न, वो भी जब तक कोई बड़ा बूढ़ा गुस्सा हो कि उसके ऊपर मार ना दे, इट वर्क्स. दीज आर योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. आप पैसा लेते हो और इसमें इन्वेस्ट करते हो. आई वुडंट से आप पैसा लेते हो और धनिया में इन्वेस्ट करते हो, कांदा बटाटा में इन्वेस्ट करते हो. नहीं, वो तो पैसा डाला खा गया, पैसा डाला खा गया. इन्वेस्ट नहीं होता. इन्वेस्ट मतलब फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू इन्वेस्ट. सो इन्वेस्ट इन एसेट्स. घर के ये क्या है? एसेट्स है. रेफ्रिजरेटर, कार, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, एसी, एयर कंडीशनर, दीज आर ऑल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं होता. जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं होता.
सो आई होप थोड़ा आपको आइडिया आ गया आपके घर के कंपैरिजन में कि ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। अबाउट फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का मतलब पैसा। अगर घर में नेक्स्ट मंथ में कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, किसी का एंगेजमेंट होने वाला है, किसी की शादी होने वाली है, या कोई बीमार हो गया, तो मे बी मम्मी डैडी मे बी पैसा नहीं है उनके पास में, तो वो क्या करेगी, दे विल गो टू समवन, किसी के पास जाएंगे और क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी कि हमको 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आप क्या दे दो, लोन दे दो। तो लोन इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मेरे ऊपर है, इट्स नॉट कांदा बटाटा, इट इज नॉट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप कोई एसेट नहीं खरीद रहे हो, बट इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप पैसों का बंदोबस्त कर रहे हो, कीप दिस इन माइंड, पैसों का बंदोबस्त। मे बी आपने किसी अंकल आंटी नाना नानी के पास पैसा नहीं था, तो यू वेंट टू समवन जो मनी लेंडर है, और उससे आपने 1 लाख 2 लाख जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी 50,000, एंड फिर उसके बाद में आप हर महीना इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट भी क्यों दे रहे हो, लोन लिया इसके लिए दे रहे हो ना, वो भी बन जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंपनीज क्या करते हैं आपको ये अंडरस्टैंड करना है। क्या कंपनीज कांदा बटाटा टमाटर खरीदते हैं? नहीं, वो मैंने आपको बस बताया ऐसे। कंपनीज के लिए डेटर, क्रेडिटर, एवरीडे कंपनीज इनके साथ बात करती है। सो आई रिपीट, डेटर के कनेक्शन में अगर पैसा आता जाता है, क्रेडिटर के कनेक्शन में पैसा आता जाता है, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, स्टॉक, ये सब कंपनी हर दिन डील करती है, इनके साथ में हर दिन डील करती है। तो ऑल ऑफ दीज बिकम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई रिपीट, नॉट कांदा बटाटा, नॉट नमक हल्दी मसाले, नहीं, वो घर के लिए। फॉर अ कंपनी, डेटर, creditor, bill receivable, bill payable, stock. I'm keeping simple examples today. I'm not पूरा दुनिया भर के examples में नहीं दे रहा कि डेटर से हमको पैसा आया, हमने क्रेडिटर को पैसा दिया, बिल रिसीवेबल से हमको पैसा आया, बिल पेएबल को हमने पैसा दिया, हमने स्टॉक खरीदा, माल खरीदा, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हमको पैसा देना पड़ा, हमने गुड्स बेचा, हमारे पास पैसा आया। तो ये कंपनी हर दिन करती है। दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर अ कंपनी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो दूसरा हमारा लिस्ट है, सेकेंड वन, वो कंपनी के लिए क्या है। कंपनी चलो टीवी नहीं खरीदती है, बट कंपनी मशीन खरीदती है, फर्नीचर खरीदती है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदती है, खरीदती है बेचती है, खरीदती है बेचती है। मशीन पुराना हो गया बेच देगी, फर्नीचर पुराना हो गया बेच देगी, डिलीवरी वैन पुराना हो गया बेच देगी। Nowadays that you may get a Amazon delivery, a Swiggy delivery, a Zomato delivery, जो रेस्टोरेंट से आप ऑर्डर करते हो, कोई ना कोई बाइक पे बैठ के आता है, बराबर। बट द वर्ल्ड इतनी मॉडर्न हो चुकी है, इतना टेक्नोलॉजिकली ये दुनिया आगे जा चुकी है, दैट देर आर सर्टन पार्ट्स इन द वर्ल्ड जहाँ पे हमारे भारत देश जैसे ऊपर केबल्स नहीं लटके हैं, इंटरनेट का केबल, इलेक्ट्रिसिटी का केबल, ऐसा कोई सब अंडरग्राउंड है, तो देर इज नो इशू अबाउट। तो ड्रोन डिलीवरी होती है। सो आई रिपीट माई सेल्फ, वॉट इज अ ड्रोन डिलीवरी? देर इज नो ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व्ड। A drone which is kind of a mini helicopter comes, obviously it is at least right now not possible in every part of India as such, but there are very countries जहाँ पे there is no problem, तो ड्रोन डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। मीनिंग टू से अमेजोन क्या बोलेगा, यहाँ पे तो ड्रोन्स डिलीवर करते हैं, तो हमारे पास जो पुराने डिलीवरी वैन थे, बाइक्स थे, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम ये बेच देते हैं। तो आई रिपीट, जब आप एसेट्स, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार खरीदते हो, बेचते हो, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बिकॉज यू पुट मनी इन दिस, एंड ये काफ़ी सालों तक काम आता है। जब तक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होता, यू डोंट सेल दैट, यू यूज इट, यू यूज इट, यू यूज इट। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होगा फॉर अ कंपनी? कंपनी भी लोन लेती है, बट बिफोर लोन कंपनी शेयर्स बेचती है। मैंने कंपनी रिक्वायर्स मनी, उन लोग क्या बेचते हैं? इक्विटी शेयर्स,
प्रेफरेंस शेयर्स, अगर पैसा कम गिर गया दे टेक अ लोन, फिर वो लोन पे उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी फाइनेंस से कनेक्टेड हो जाता है। शेयर्स पे उनको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है, वो भी फाइनेंस से कनेक्टेड हो जाता है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इशू, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब पैसा वापस दो, बैंक लोन लिया है कभी ना कभी तो देना पड़ेगा, उसके ऊपर तब तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जब तक इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो आई रिपीट, ये जो पैसों के साथ पैसा लाना और वो पैसे को लौटाने के साथ फाइनेंसेस के साथ कनेक्टेड है, दैट इज गोइंग टू बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। व्हाट इज बिहाइंड मी इज जस्ट अ सिंपलर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। राइट नाउ let me from this घर का माहौल take you to a company माहौल again, and if you notice above me I'll just get side, yeah, so operating activity में थोड़ा नीचे, I'm not explaining everything to you today, okay, थोड़ा जब lectures आगे जाएगी I'll explain the remaining also, but I'm just saying कि ये हमारा हर दिन के क्या है, कांदे बटाटे मसाले, फाइन। अभी अगेन कंपनी के लिए नो कांदे बटाटे मसाले, current liability, current asset, current asset, current liability. What is current asset, current liability? Stock, debtor, creditor, bill receivable, bill payable. ये current है। current मतलब एक साल के अंदर के assets, not 10 साल के assets, एक साल के अंदर के। तो if debtor change होता है, creditor change होता है, example, so change कैसे होगा? क्रेडिटर मतलब सप्लायर, अगर आपकी मम्मी ने किधर एक कैलेंडर पे लिख के रखा था, दूध वाला भैया 1500, 1500, फिर 2 तारीख को लिखा दूध वाला भैया 500, फर्स्ट था 1500, फिर बन गया 500। तो इफ यू आस्क योर मॉम कि क्या हो गया एक दिन के अंदर, पहले आपने उसका नाम लिखा था बाजू में 1500, फिर उसका नाम वापस लिखा बाजू में 500, ये बीच में का 1000 का क्या हो गया? योर मॉम विल से मैंने पैसे दे दिए, तो अभी मुझे दूध वाला भैया का नाम याद 1500 के लिए नहीं रखना। हाँ, सो सिंपल अगेन, दूध वाला भैया इज अ क्रेडिटर, आपके घर का क्रेडिटर। जब उसका अमाउंट चेंज होता है 1500 से 500, व्हाट डज दैट मीन? यू पेड, आपने पैसे दिए तो कैश गया ना। हाँ, तो चेंजेस, सर स्टॉक बदल गया, सर डेटर बदल गया, क्रेडिटर बदल गया, बिल रिसीवेबल बदल गया, बिल पेएबल बदल गया। हाँ बाबा, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी जब बदले तो अंडरस्टैंड करो कैश के वजह से बदले, या तो कैश आया या तो कैश गया। दे विल बी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हर दिन ये होता है। देन थोड़ा नीचे आओगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देखो इसमें क्या दिया गया है, सेल ऑफ एसेट, नीचे परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, डिलीवरी वैन, दीज आर ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स। या हो सकता है आपकी कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे। तो आई रिपीट माई सेल्फ, दूसरी कंपनी के जब आप शेयर्स, डिबेंचर्स खरीदते हो तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। हाँ, तो वो ऑपरेटिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थोड़ा नीचे आप आओगे, फाइनेंसिंग के क्या एग्जांपल्स दिए हैं, प्लीज रीड। शेयर्स, डिबेंचर्स, क्या कहा? इशू, इशू मतलब सेल, व्हेन यू सेल शेयर्स एंड डिबेंचर्स पैसा आता है। टेक्निकली थोड़ा अगर आप आगे नीचे जाओगे, रिडेम्पशन, व्हाट इज रिडेम्पशन? पैसा वापस दे दिया आपने। क्योंकि थोड़ा बाजू में आप देखोगे, यू सी डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या है? लोन, लोन। तो लोन, नोबडी वांट्स टू कीप लोन। अगर एक घर में पापा है, उन्होंने लोन लिया है, ही वांट्स टू, वो पूरी कोशिश करेंगे उनकी लाइफ टाइम में। ऐसा ना हो कि लोन इतना ले लिया, भर नहीं पाया, कि बच्चों पर चला गया। नो, कि भाई लोन मैंने लिया, मैं ही लोन वापस लौटा दूंगा। एवरीबडी ट्राइज टू डू दैट, कंपनी भी वही कोशिश करती है।
हमने लोन लिया है, हम लोन लौटा देंगे. सो टेकिंग अ लोन इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रिटर्निंग द लोन इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोन, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, पेइंग इंटरेस्ट ऑन दैट लोन ऑल्सो इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. टुडे माई irada is what, to give you little examples, okay, and to only explain to you कि which activity में कौन सा what you call distinction आएगा, कौन सा काम कौन से एक्टिविटी में आना चाहिए. okay, now hold on, because this is also a very important objective question. so today practical question नहीं solve कर रहे ये पूरा, I am only trying my best to explain operating, investing and financing. okay, बता तो दिया but in a question answer style. so let me give you a few examples. so you can have a long list, question तो ऊपर है. the following would form part of which activity under cash flow statement. now very quickly let me drop down multiple questions for you. तो this is how आपको भी questions मिल सकते हैं. okay, so first to 15th एक करके सब की आंसर्स जितना होता है मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं. ओके, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर. नाउ क्वेश्चन मार्क, दिस इज एक्चुअली अ नॉन कैश आइटम. आई रिपीट, डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम. व्हाट डज दैट मीन? रेंट इज अ कैश आइटम. अगर आप जाके किसी को रेंट पे करते हो, आप एक्चुअली उसके पास गए, आपने जेब से पैसे निकाले 5,000, 10,000, 15,000 एंड यू पेड, रखो पैसे. इलेक्ट्रिसिटी इज कैश, इंटरनेट बिल इज कैश. यू हैव टू गो टू एन ऑफिस एंड यू हैव टू पे, या ऑनलाइन बट यू हैव टू पे. डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम. व्हाट डज दैट मीन? सर डेप्रीसिएशन फर्नीचर, सर मतलब फर्नीचर को पे करना पड़ा? नहीं 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 नहीं, फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया. बट सर आपने बोला था furniture is an investing activity. yes, sale of furniture, purchase of furniture, this is not that, this is depreciation. depreciation हर दिन होता है. मंडे तुम फर्नीचर पे बैठे, ओके, थोड़ा वो जमीन के साथ में घिस गया, फाइन. आपने गाड़ी चलाया, टायर घिस गया. चप्पल पहन के चले, चप्पल घिस गया. डेप्रीसिएशन हर दिन थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा वैल्यू कम होता है. So depreciation is a non-cash item. You don't pay cash to anyone. But in a statement which you see above, okay, एकदम ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा. Net profit उसके नीचे है adjust non-cash. Please read that carefully. Non-cash मतलब पैसों में कुछ फर्क नहीं होता, आता जाता नहीं. इसको आपको क्या पे लिखना है? प्लस depreciation. Okay, so I repeat. दिस स्टेटमेंट जो मैं थोड़े एक लेक्चर के बाद में थोड़ा और डिटेल में आपको समझाऊंगा, कहता है कि इफ देयर इज अ नॉन कैश आइटम, मतलब आप पैसे किसी को देते नहीं हो, ओके, उसका एक एग्जांपल है डेप्रीसिएशन. उसको आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है. अच्छा, इट मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू. अगर मेरी जेब में, आपकी जेब में 100 रुपीज है मॉर्निंग 9 o'clock एंड 1 घंटे में आपने 10 रुपीज का रेंट भरा, 10 रुपीज का रेंट भरा. सो आपकी जेब में अभी कितना रहेगा? सो यू से सर 9 बजे को तो 100 रुपया था, 100. फिर मैं लैंडलॉर्ड जो दुकान का मालिक है ना, मैं उनके घर पे गया और मैंने उनको 10 रुपया दिया. तो सर अभी जेब में तो 100 नहीं है, 90 है. हाँ, तो आई रिपीट, वो माइनस हो गया, पैसे गए. बट अगर वही 1 घंटे में आप बोलोगे कि सर मैंने गाड़ी चलाई, टायर घिस गया, सर 5 रुपया डेप्रीसिएशन हो गया, 5 रुपया डेप्रीसिएशन. तो अगर 9 o'clock को जेब में 100 था, बिकॉज ऑफ दैट 5 रुपया डेप्रीसिएशन, क्या वो 95 हो जाएगा? नो. क्यों? बिकॉज यू डोंट पे एनी वन डेप्रीसिएशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मे बी सम ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड बट प्लीज समझो, खर्चे 2 प्रकार के होते. एक होता है खर्चा, एक आप बोल सकते हो होता है नुकसान, लॉसेस. डेप्रीसिएशन इज अ लॉस, यू डोंट पे एनी वन.
किसी को आप पैसा देते नहीं हो। तो बिकॉज डेप्रिसिएशन किसी को पे करते ही नहीं है तो पैसा तो किधर जाता नहीं है। हाँ, इसके लिए उसको प्लस किया जाता है। टुडे जस्ट रिमेंबर कि डेप्रिसिएशन ऑन एनीथिंग, मोटर कार, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डिलीवरी वैन, ओके, ऑन एनी एसेट इज अ नॉन कैश आइटम जिसका प्लेसमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगा। ओके, सो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि वे डू यू राइट डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, उसको डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार कर लो, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कर लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन सेकेंड, चेंज इन क्रेडिटर। थर्ड, चेंज इन डेटर। व्हाट इज चेंज? डेटर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। कस्टमर, क्रेडिटर इंक्रीज, डिक्रीज। सप्लायर, उसके नीचे चेंज इन स्टॉक। आपके घर में कांदा बटाटे का स्टॉक बराबर कम ज़्यादा होता रहेगा। इफ़ यू ईट एग्स, अंडों का स्टॉक कम ज़्यादा होता। बिकॉज वाई? बिकॉज आप खरीदते हो, पैसा जाता है, आप खरीदते हो, पैसा जाता है, और ये आप हर दिन करते हो। सो सेकेंड, चेंज इन क्रेडिटर, एवरी डे यू डील विद देम। चेंज इन डेटर, एवरी डे यू डील विद देम। स्टॉक, माल, किचन के अंदर का, फ्रिज के अंदर का, ओके, मसाले, हल्दी, धनिया, ये वो तो हर दिन चेंज होता है। हाँ, चेंज इन बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल। बिल रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे कस्टमर प्रॉमिस करता है साइन करके, मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दूंगा, मैं आपको 20 दिन बाद पैसे दूंगा। बिल रिसीवेबल इज अ करंट एसेट। चेंज इन बिल पेएबल, कौन सा वाला? 6th वाला। बिल पेएबल इज अ करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्यों? इलेक्ट्रिसिटी बिल यू कैन से इज अ बिल पेएबल, पे तो करना है ना। एन इंटरनेट बिल इज अ बिल पेएबल, पे तो करना है। ओके, आप अगर कोई चैनल्स देखते हो जो केबल वाले का बिल है, वो भी बिल पेएबल है। सो आई रिपीट, यू हैव टू पे 1 महीने में, 2 महीने में, वरना कट जाएगा कनेक्शन। सो करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी में उतार चढ़ाव, इंक्रीज डिक्रीज, ओके, और उसकी वजह से जो पैसा आता जाता है इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो वेदर इट इज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, okay, these are all categorized as current asset or current liability. An increase and decrease in them is every day, रोजाने का बहाना। ऑपरेटिंग मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, एवरी डे। नेक्स्ट, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मशीन, आपके घर के अंदर अगर एक मिक्सर है जिसमें जिसमें अंदर मम्मी मसाला बनाती है, ओके, क्या वो हर दिन बेचते हो? नो। ओके, वो तो इतना पुराना हो गया रहेगा कि यू मे वंडर कि मम्मी ये क्या मेरे पैदा होने के पहले खरीदा था? ओके, पॉसिबल है। गुड ब्रांड के मिक्सर्स टिक जाते हैं, इतने साल टिक जाते हैं। हाँ, तो आई रिपीट, यू डोंट थिंक हर दिन नहीं होता ये। तो जो एसेट के साथ कनेक्टेड है, फिक्स्ड एसेट। सो प्लांट एंड मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट, तो उसका खरीदारी और बिक्री, बेचोगे तो पैसा आएगा, खरीदोगे तो पैसा जाएगा। इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेस ऑफ डिलीवरी वैन, ओके, KFC, मैकडोनल्ड्स, स्विगी, ये जो आपका डिलीवरी वैन होता है ना, या डिलीवरी बाइक होती है, दे डोंट बाय इट एवरी डे। आपके घर पे अगर कोई कुछ डिलीवरी करने आया अमेजोन से, आप उसको पूछोगे मंडे पे आपकी गाड़ी कौन सी होती है, वेनेसडे को गाड़ी का ब्रांड कौन सा होता है? दिल से सर एक ही है, 5 साल से चला रहा हूँ, सारे डिलीवरीज उसी में मैंने कर दिए हैं। वो फिक्स्ड एसेट है। दैट इज अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 9th, सेल ऑफ लैंड। लैंड, समबडी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन डे और 2 बैक कि लैंड का डेप्रीसिएशन क्यों करते हैं? टेक्निकली डेप्रीसिएशन नहीं करना है, ओके, क्योंकि लैंड मैं बोल सकता हूँ या तो वैल्यू सेम रहता है या तो उसका वैल्यू अप्रिशिएट होता है। बेसिकली लैंड किधर जाता नहीं है, हम मर के चले जाएंगे। जिस लैंड की वजह से हम दोस्तों के साथ में, हम भाई बहन के साथ में झगड़ा करते हैं, वो लैंड वही के वही रहेगा। हम मर के चले जाएंगे, उसके अंदर गाड़े जाएंगे।
लैंड किधर जाता नहीं, इट्स अ फिक्स्ड एसेट, इट इज सदियों से है, परदादा दादा हम यूज करते आ रहे हैं, तो उसको खरीदो बेचो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओके, व्हेन यू पुट मनी इन अ कंपनी, व्हेन यू पुट मनी इन द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में पैसे डाल सकते हो, व्हाई नॉट, ओके, सो वो क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट, ओके। सो रिपीट, देयर आर मेनी कंपनीज जो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नया वैक्सीन लाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। सो दोज कंपनीज रिक्वायर मनी, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल खरीदना है, उनको प्रोडक्शन को बढ़ाने का है, उनको डिलीवरी जल्दी जल्दी करने हैं, उनको रिसर्च करना है। हाँ, सो मे बी आप बोलोगे, आपकी कंपनी के पास पैसा है, आप बोलोगे अच्छा हम वैक्सीन के रिसर्च में आपको 500 करोड़, आपको 1000 करोड़, ओके, यस, इन्वेस्टमेंट, ओके, फिर जो कंपनी कमाएगी आपको भी थोड़ा उसमें से प्रॉफिट मिल जाएगा, इट इज इन्वेस्टमेंट, ओके, सो इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 11th, इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, यहाँ पे स्टोरी बदल जाती है, बिकॉज व्हेन यू सेल शेयर्स टू द पब्लिक, पैसा आता है, पैसे के साथ जो कनेक्टेड है, फाइनेंस के बंदोबस्त के साथ, पैसा आया, पैसे आने के लिए मैंने ये किया, ओके, पैसे लौटाने के लिए मैंने ये किया, पैसा आने के लिए आई डिड दिस, पैसा लौटाने के लिए आई डिड दिस, इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इफ यू वांट मनी, कंपनी को पैसा अगर चाहिए तो वो शेयर्स बेचेगी, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर पैसा कम गिर गया तो वो लोन लेगी, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। वो अगर उनका सेटल हो गया मतलब 5 साल 6 साल, अभी कंपनी पटरी पे आ चुकी है, कंपनी अच्छी कर रही है, इट्स डूइंग गुड प्रॉफिट्स, सो नाउ व्हाट विल द कंपनी से, अभी जो लोन हमने लिया था ना, हम लोग वापस देगी, विल गिव इट बैक, अपने पास पैसा बहुत है, हाँ, उसको कहते हैं रिडेम्पशन, वापस पैसा दे दो, रिडेम्पशन। सो 13th वन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिटर्निंग द मनी बैक, रिडेम्पशन, इन्वेस्टिंग, सॉरी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि पैसा लाने का बहाना और पैसा लौटाने का बहाना इज ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स। 14, व्हाई डिड यू गिव डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, खुश रखना था उनको, क्यों खुश रखना है, अरे उन्होंने पैसे दिए मेरे को, दे गिव मी फाइनेंस, so I have to keep them happy. How? I give them dividend. Every year I keep on giving them dividend. Okay? तो वो भी तो connected to finance हो गया. And lastly, issue of debentures. Debentures is a loan. Simple. तो अगर आपको किसी से लोन लेना है, आपको कुछ प्रूफ देना पड़ता है ना उनको, तो that becomes a debentures. एक तरीके का it's a certificate कि yes मैंने आपसे 2 लाख का लोन लिया, ये रखो डिबेंचर, प्रूफ कि मैंने आपसे लोन लिया है। So it is a loan taken. Issue of debentures is nothing but a loan taken. So you are taking money. That is also financing activity. In the 15 activities, okay, activity मतलब कुछ ना कुछ काम हो रहा है, उसका असर कैश पे होता है। The only first item, the very first item, depreciation, उसका असर नहीं होता। But then depreciation का मतलब है तुमने पैसे किसी को दिए ही नहीं है, हाँ, इसके लिए वो अमाउंट ऐड करना पड़ता है, क्योंकि पैसे किधर जाते नहीं है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, एनी काइंड ऑफ अ डेप्रिसिएशन। 3 एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। टू कीप इट सिंपल, आई डिड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ अ घर, बट ऑब्वियसली घर का लॉजिक आप कंपनी के लिए नहीं लगा सकते, बिकॉज कंपनी का लॉजिक कंपनी के स्टाइल में प्रेजेंट किया जाता है, बट स्टिल है तो वही 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। व्हाट एम आई डूइंग, इसमें आपको थोड़ा गृह कार्य दे रहा हूँ, होमवर्क। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मेरे को देना, ओके, यू कैन ऑलवेज रिवाइंड द वीडियो टू गेट द एक्सप्लेनेशन वंस अगेन, बट इन द कमेंट बॉक्स आई वॉन्ट टू नो द आंसर फॉर दीज 10, क्वेश्चन मार्क है ना, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो वो थोड़ा थोड़ा केबीसी है, आई डोंट हैव 4 ऑप्शंस फॉर यू, ओके, तो नॉट फुल अमिताभ बच्चन, थोड़ा अमिताभ बच्चन, ओके। डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन क्रेडिटर, परचेस ऑफ कार, सेल ऑफ बिल्डिंग, इक्विटी शेयर्स, मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंस से कनेक्टेड है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप देते हो वो किससे कनेक्टेड हो जाता है, ओके।
redemption of debentures, increase in debtors. I have given it in a jumbled manner. Okay, what 15 I thought वो order में दिया था मैंने, but this is in a jumbled manner. In the comment box आप ये लिख लो और उसके आगे dash करके activity लिखना. Okay, so whether it's right wrong I will respond to you in the comment box. So I hope the introduction part of what कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको समझ में आ चुका है. ओके, इफ यू विश टू आई डू वन थिंग, जस्ट अ मिनट. सो आई एम नो लॉन्गर ऑन स्क्रीन, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट, ताकि ना यू डोंट मालूम पड़ा स्क्रीन शॉट मेरे साथ में ले लिया, अरे सर आपको मेरे को कंटिन्यूसली देखना पड़ रहा है. नो डोंट वरी, अभी अब बिंदास ले लो स्क्रीन शॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, पर मैं वापस आ जाता हूँ. सो हियर गोज. तो आई कैन बी ना, स्क्रीन से बड़ी मोहब्बत है मुझे. सो आई होप ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया. इन द कमेंट बॉक्स एक्टिविटी, ओके, डोंट जस्ट प्रोवाइड मी द आंसर, बिकॉज देन आई बी लाइक नो मेरे को मैच द कॉलम करना पड़ेगा. सो डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी डैश कौन सा एक्टिविटी, एंड डिक्रीज इन स्टॉक डैश कौन सा एक्टिविटी. इन द कमेंट बॉक्स प्लीज ट्राई टू प्रोवाइड मी द आंसर्स. ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. दिस एक्सप्लेनेशन इटसेल्फ is a little bit longer than what I expected, but most probably the next time when we continue this particular topic, that is analysis of financial statements, और उसके अंदर हम लोग cash flow statement करेंगे, तो हम लोग उसका numerical data number wise we are going to calculate. Okay, so that is it for me for the day. Very quickly, let me remind you that if this explanation was understood by you, please do provide a like to the lecture, share the information of the lecture, of the channel with as many of your friends and colleagues and relatives and rishtedars as possible. The comment box can be used for any doubt clarification, for any doubt query that कोई question आपको करना है, या तो आज तो मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दे दिया है, तो उसके लिए भी आप डेफिनेटली यूज़ कर लेना. ओके, आंसर सही होना ज़रूरी नहीं है, आंसर देना ज़रूरी है. इट्स माई जॉब, अगर वो गलत है, वो गलत क्यों है, आपको एक्सप्लेन करा के देना. टिल द टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सीनियर्स एंड जूनियर्स, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली members. Good day to all of you. God bless. Bye for now.